Hello, my dear friends of 11th Standard English Medium. कैसे हो आप लोग? Once again, welcome back to my YouTube lecture of English subject. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक बहुत मज़े में होंगे और लॉन्ग 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 वेकेशन का आनंद उठा रहे होंगे। और खैर अभी तो ऑफिशियली दिवाली वेकेशन भी पड़ गया है, बट सिंस this is not a live lecture, this is a video lecture, so you will have an opportunity to watch this lecture as and when the time permits you. ओके तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं एक नई चैप्टर का। आपका जो टेक्स्ट बुक है स्नैपशॉट्स, ओके, उसका सेकेंड चैप्टर है द एड्रेस। द एड्रेस इज अ वेरी poignant story which is on the background of the post Second World War. Okay, the address which has been written by Morga Minko has a kind of, the touch of sadness in the story. तो मोगा मिनको तो इसके राइटर हैं और स्टोरी का जो बैकग्राउंड है, जैसे मैंने आपको बताया, वो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पोस्ट यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, उसके बाद का जो टाइम पीरियड था उसका बैकग्राउंड है यहाँ पे। एंड ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट द एड्रेस, देन द पर्टिकुलर एड्रेस which is referred to in the story, I have mentioned that as well, number 46 Marconi Street, ठीक है, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट हॉलैंड के किसी एक शहर का ये एड्रेस है एक्चुअली। तो at that particular place the incidents of this story takes place. Okay, तो स्टोरी के बेसिकली 3 कैरेक्टर्स हैं। I've written the names of the characters also on the board. एक तो है जो एक यंग लेडी है नैरेटर, सो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट अ वुमन नैरेटर, ठीक है। और नैरेटर जो है उनकी मदर का डेथ हो गया। इनफैक्ट ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑफ द नैरेटर हैव डाइड इन द वॉर, ठीक है, और वो अकेली अपने फैमिली में से बची है, राइट। सो नैरेटर बेसिकली रिफर्स टू अ यंग लेडी who is the only survivor from her family. And then we will have another character, Mrs. Dorling. Okay, वो दूसरी कैरेक्टर है and a 50-year-old girl जो है वो Mrs. Dorling की डॉटर है। तो ये 3 मेन कैरेक्टर हैं, but most of the story is in the narrative form. डायलॉग्स इसमें बहुत ही कम है, ज्यादा करके डिस्क्रिप्शन नरेशन ज्यादा है, ठीक है। Now, as I told you earlier that this story has a background of the roundabout time of the Second World War. आप लोग जानते ही हो, आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा 8th, 9th standard, 10th standard में कि so far we have witnessed 2 world wars. Okay, the first world war has happened between the period of 1914 to 1918. The Second World War happened, which was much more devastating. It happened between 1939 to 1945. So obviously it was much more destructive, much more devastating, and it disturbed the lives of thousands of people, especially in the continent of Europe. Okay, आप लोग जानते ही हो कि वॉर जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है, बहुत ही डेवस्टेटिंग होता है। It brings ruins, it brings upheavals in the lives of the common people. We all know it very well, but because of the greed or the passion or the kind of over ambition of some of the leaders of the world, of some of the countries, they instigated the war. They did not think much about the lives of the common people. They did not think much about the destruction it would cause on the human lives. They just initiated the war somehow. अपनी एम्बिशन को पूरा करने के लिए कुछ लीडर्स ने ये वॉर को इंस्टिगेट किया, इनिशिएट किया, कॉमन पीपल के बारे में कुछ सोचा नहीं। ऐसे नागरिक, ऐसे निर्दोष लोग जिनका बेसिकली वॉर के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आखिर में तो उनको ही भुगतना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें भी नहीं सोची वो सारे लीडर्स ने, और वॉर हुआ, काफ़ी टाइम तक चला,
हिस्ट्री में आपने सब पढ़ा ही होगा कि 1939 टू 1945 ये पीरियड था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का. सो ऑब्वियसली practically it lasted for 7 years, and most of the European countries and America and the major countries like Japan were also involved in this war, and unfortunately thousands of people lost their lives. तो काफी सारे ऐसे डिस्ट्रक्शन, रूइंग्स और अपहीवल्स और ऐसे लाइक वॉर के बैकग्राउंड से रिलेटेड काफी सारी स्टोरीज लिखी गई है. So from these stories, from such kind of descriptions, from such kind of narrations only we are able to find out कि कितना खतरनाक वो माहौल था, जिसमें अच्छे खासे जो कंडीशन में रहने वाले जो सुखी परिवार जो थे, ठीक है, उनके फैमिलीज उजड़ गए, उनके घर मकान वगैरह टूट गए, सारे के सारे फैमिली मेंबर्स मारे गए, और अगर कोई बच भी गया तो एक आध दो इंसान अगर बच गए, ठीक है, तो जो चले गए हैं वो तो चले ही जाते हैं, उनके लिए कोई सोचना नहीं होता है, लेकिन जो बच गया है, ठीक है, उसके दिमाग में एक बहुत गहरा असर रहता है. आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि कितना गहरा असर होता है कि वॉर की वजह से पूरा लाइफ उनका चेंज हो गया. जिनके साथ वो रहते थे, ठीक है, अब वो लोग उनके साथ नहीं है. द नेक्स्ट ऑफ द किंग्स, द फैमिली मेंबर्स, दे आर नो मोर विद देम नाउ. तो ये लड़की जो है नरेटर, ऐसी एक लड़की है जो वॉर के बाद अपने फैमिली में से वो अकेली बची हुई एक लड़की है, ठीक है. लास्ट में उसने अपनी मदर को भी गंवा दिया है, और वर्ल्ड वॉर वगैरह अब खत्म हो गया है. When I'm talking about the post-war situation, तो उसका मतलब वो होता है कि वॉर के बाद का समय. Almost everything has come back to the normal situation now. Okay, in the background of the story, that sort of situation has been described by the writer. कि अभी वॉर नहीं चल रहा है, अभी सब कुछ नॉर्मल सिचुएशन में आ गया है. लेकिन कॉमन लोगों के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में जी रहे हैं. उन्होंने काफी कुछ गंवाया है, अपना घर गंवाया, अपने फैमिली मेंबर्स गंवाए. तो वैसे ही काफी लोग जो थे उनमें से एक लड़की है ये नरेटर. ओके, सो शी गोज टू अ पर्टिकुलर एड्रेस. जो एड्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, हॉलैंड का, हॉलैंड यानी उसको नेदरलैंड्स भी कहते हैं, ठीक है, उसके ये एड्रेस पर जाती है, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट. ये एड्रेस उसकी मदर ने कुछ सालों पहले दिया था. When she lived with her mother actually, okay, at that time she gave this address to her. Okay, हालांकि फैमिली मेंबर्स बिछड़ गए थे, लेकिन कई बार ये लड़की अपनी मदर के पास जाती थी. तब ये एड्रेस उसकी मदर ने उसको दिया था. इसलिए दिया था क्योंकि हर मदर had an old acquaintance, Mrs. Dorling, ठीक है, ये उसकी फ्रेंड थी, ओल्ड एक्वेंटेंस थी. वो उनके घर में बार बार आती थी. She frequently visited the house, okay, और क्योंकि वॉर उस वक्त चल रहा था, और मिसेस डोर्लिंग ने उसकी मदर को, नरेटर की मदर को ऐसा बोल के कन्विंस किया कि कुछ भी हो सकता है वॉर में, तो आपके घर में पड़ी हुई जो सारी चीजें हैं, द प्रेशियस बिलोंगिंग्स दैट यू हैव एट योर हाउस, ओके, I should take them along with me at my place. ठीक है, ये मिसेस डोर्लिंग के घर का एड्रेस, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, बेसिकली उनके घर. तो ऐसा कन्विंस किया मिसेस डोर्लिंग ने नरेटर की मदर को कि आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स में अपने पास, अपने साथ ले जाती हूँ, और उसको मैं संभाल के रखूंगी. ऐसा बोल के वो जब भी वो आती थी इस मदर के पास, तो थोड़ी थोड़ी चीजें लेकर जाती थी. एंड वंस अपॉन अ टाइम व्हेन द नरेटर वाज आल्सो प्रेजेंट, ओके, एट along with her mother, she could see that a heavy bag, Mrs. Dorling, while leaving the house, was carrying a heavy bag which was full with the precious belongings. तो काफी एक बार तो उन्होंने ये भी देखा था, यानी नरेटर ने, कि एक बहुत बड़ा सा भारी वाला बैग भर के सारे बिलोंगिंग्स को लेकर अपने ये एड्रेस पर लेकर जाती है. तो उसको बेसिकली पता था कि उनके घर की बहुत सारी चीजें जो है
वो मिसेस डोर्लिंग लेकर गई है। ओके, तो समय आगे बढ़ता गया एंड इवेंचुअली द वॉर बिकेम मोर डेंजरस, मोर डेवस्टेटिंग, much more upheavals took place and eventually जो नरेटर की मदर है वो वॉर में मारी गई, उनका डेथ हो गया। ठीक है, हम जब वॉर की बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही खतरनाक वॉर था जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता था। हॉलैंड एक ऐसा कंट्री था which was one of the most affected countries among all the countries who participated in the war. ठीक है, क्योंकि हॉलैंड जर्मनी से करीब था। आपको थोड़ा बहुत अगर वॉर का आइडिया हो तो आपको पता ही होगा कि जर्मनी के जो चांसलर थे एडोल्फ हिटलर, who was a main culprit to instigate this war. ठीक है, तो हॉलैंड जो था वो जर्मनी ने हॉलैंड को जीत लिया था, बहुत सारे हमले किए थे, तो हॉलैंड में रहने वाले काफी सारे लोगों के ऊपर असर हुआ था। बेसिकली it was a war between the Nazis and the Jews. Jews जो थे उनसे एडोल्फ हिटलर इतनी नफरत करता था कि लाइक इट वाज द सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी लिविंग इन जर्मनी, तो उसकी इच्छा ये थी कि सिर्फ और सिर्फ नाजी लोग ही जर्मनी में रहने चाहिए और जर्मनी के एरिया में जितने भी कंट्रीज जितना भी एरिया आता है उसमें सिर्फ नाजीज रहने चाहिए, कोई फॉरेनर्स नहीं रहना चाहिए। ज्यूज जो थे वो ऑब्वियसली इजराइल से थे, तो सबको वो मार के भगा के निकाल देना चाहता था। और जो लोग नहीं जा रहे थे उनके लिए कुछ कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनवाए थे एडोल्फ हिटलर ने। तो जो कोई भी ज्यूज पकड़े जाते थे छिप के रहते थे, वैसे तो अंडरग्राउंड या तो जैसी उनको जगह मिली वहां पे छुप के रहते थे। बट अनफॉर्चुनेटली इन केस इफ दे वर फाउंड आउट एंड कॉट, दे वर केप्ट इन द कॉन्सेंट्रेशन कैंप, और वहां पे उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार होते थे। ठीक है, और इन एक्सट्रीम केसेस so many people were kind of engulfed in small rooms of concentration camps, including women and children also. ठीक है, और एक ही रूम में, एक ही कमरे में सबको खचाखच बंद करके, भरपूर मात्रा में बंद करके उनके रूम को लॉक किया जाता था और अंदर जहरीली गैस छोड़ी जाती थी और सबकी इंस्टेंटली मौत हो जाती थी। ये एक सिनारियो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ही अत्याचार कोई ना कोई हुआ होगा जिसकी वजह से नरेटर के 1 by 1 फैमिली मेंबर्स मारे गए। एट लास्ट नरेटर की मदर भी जो है उसकी डेथ हो गई, बट समहाउ द नरेटर वाज एबल टू एस्केप फ्रॉम ऑल दैट सिचुएशन। उसमें से वो बच गई। ठीक है, शी वाज द ओनली सर्वाइवर ऑफ हर फैमिली। और सब कुछ नॉर्मल होने के बाद अब उसको याद आता है कि जो एड्रेस, उनका खुद का घर जो है वो तो टूट गया था, सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन उसको याद आया कि उसकी मदर ने कुछ सालों पहले एक एड्रेस दिया था 46 मार्कोनी स्ट्रीट, और ये भी बताया था कि उसकी जो ओनर है मिसेस डोर्लिंग, उनके पास उसके बहुत सारे बिलोंगिंग्स हैं। So she decided to visit that address on one fine day in the morning. ओके, और उसका इरादा सिर्फ यही था कि शी जस्ट वांटेड टू रिकवर दोज बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर जस्ट फॉर द प्रेशियस मेमोरी दैट दे हैड। ओके, ये बिलोंगिंग्स जो है वो वापस प्राप्त करना चाहती थी, उसी इरादे से वो गई थी। बट अपेरेंटली मिसेस डोर्लिंग, द हाउस ओनर, डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन टू गिव दिस बिलोंगिंग्स बैक टू द नरेटर। और इसीलिए जब वो सुबह आती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है, तो मिसेस डोर्लिंग जो है वो ठीक से इवन दरवाजा भी नहीं खोलती है, एंड शी इवन रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर। ठीक है, शी वाज नॉट वेरी वार्मली वेलकम्ड। अंदर आने के लिए भी बोलती नहीं और बाहर से उसको जवाब दे रही है, वो पूरा दरवाजा भी खोलती नहीं है। उसका इरादा यही है कि from inside she knew her very well, but she did not just want to reveal that she had recognized her. So she basically refused to recognize her. She did not let her in also. She could not even talk to her properly.
एंड उसको मुंह पे बता देती है कि मुंह में मेरी आंखें ठीक से अभी काम नहीं कर रही, मैं अब तुमको ठीक से पहचान नहीं पा रही हूँ, कभी किसी और टाइम पे आना, ठीक है। तो वैसा करके उसको ऐसा जवाब मिलता है, नरेटर को ताज्जुब होता है। हालांकि वो उसको पता है कि शी वॉज नॉट मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक इन फाइंडिंग आउट द प्लेस, बिकॉज दिस लेडी मिसेस रोलिंग वाज वेयरिंग द ब्लू कार्डिगन which belonged to her mother, ठीक है। एक टाइम में ब्लू कार्डिगन यानी कि स्वेटर होता है, विमेन का जो स्वेटर होता है उसको कार्डिगन कहते हैं। तो एक समय पे उसकी मदर का था ये ब्लू कार्डिगन, वो पहने हुए हैं ये लेडी। तो ऑब्वियसली जगह के बारे में तो उसकी कोई मिस्टेक नहीं हो रही है। सो शी वॉज वेरी श्योर अबाउट द प्लेस, बट अनफॉर्चुनेटली शी हैड टू लीव आफ्टर दैट। तो स्टोरी का ये बिगिनिंग पॉइंट है। आफ्टर दैट द सीरीज इन द नेक्स्ट the kind of description of the story, on her way back the narrator started thinking about the past. उसका दिमाग जो है वो पास्ट के इवेंट से भर जाता है, बिकॉज शी वॉज बेसिकली एट द प्लेस विच वॉज वेरी वेरी फैमिलियर वंस अपॉन अ टाइम। ये वही जगह है जहां पे वो रही थी, उसने अपना बचपन गुजारा था। शी ग्रू अप एट दिस प्लेस, ओके, बट शी वॉज नॉट caring about looking at the surroundings of the place, in spite of the fact that she had come there after a very long time. But she was still not thinking about looking at their surroundings. वो आसपास में देख भी नहीं रही है, उसको पता है कि अगर देखेगी तो उसको दुख होगा। The past memories always bring sadness, ऐसा उसको पता है। That's why she was not looking around. She was not even looking at the people who were walking around her. सब कुछ नॉर्मल सिचुएशन में, अभी कोई ऐसा भय का माहौल नहीं है, ठीक है, सब नॉर्मल है, लोग आसपास में घूम फिर रहे हैं, ऐसा वैसा। और उसको पता है कि कुछ लोगों को तो वो शायद थोड़ा बहुत जानती भी होगी, बट शी वॉज नॉट केयरिंग अबाउट लुकिंग एट दोज पीपल। तब से उसको ये स्ट्राइक होता है कि पास्ट की ऐसी कोई भी जगह या तो ऐसी कोई भी सारी चीजें अगर होती है, ठीक है, जिसके साथ अब कोई बिलोंगिंग नहीं है, अब उसके साथ कोई कलेक्शन नहीं है, तो वो चीजें हमेशा आपको दुख देगी। हाँ, ये जगह उसको खुशी दे सकती थी अगर उसके फैमिली मेंबर जिंदा होते, अगर उसका खुद का घर यहाँ पे होता, ओके, तो शी वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, कि चलो मैं खुश नसीब हूँ, मुझे मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरा घर वैसे का वैसा ही, मेरे फैमिली मेंबर्स भी हैं, वो सब। बट ऐसा नहीं था, उसका घर नहीं था, कोई फैमिली मेंबर नहीं था, वो अकेली थी। तो ये सारी चीजें, ये सारे लाइक दिस प्लेस इन पर्टिकुलर एंड ऑल दोस बिलोंगिंग्स, ओके, उसका अब उसको कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं लगता था। बट स्टिल शी टुक अ सेकेंड चांस टू मेक अ विजिट टू द एड्रेस, क्योंकि उस लेडी ने बोला था मिसेस डोरलिंग ने कि कभी और समय पे आना। तो she was still curious to, find out the situation of those belongings of her mother. इसलिए कुछ दिनों के बाद वो the second occasion पे उसी एड्रेस पे नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट पे वापस आती है। But at that time, Mrs. Rowling was not present at home. Her 15-year-old girl, okay, जो मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर है, 15-year-old गर्ल, एक 15 साल की लड़की जो है, वो उस जगह पे मौजूद थी। और she implied that her mother would come back soon, and the narrator showed her intention that she was ready to wait for her whenever she comes. Okay, वो बताती है कि जब वो वापस आएंगे तब तक मैं वेट करूंगी, and till that time the 15-year-old girl accompanied her to the passage of that house. So this was the situation in which the narrator actually had a chance to go inside the house. घर में अंदर जाने का अब उसको मौका मिल रहा है, but at that time only she realized she could in fact see so many belongings of her mother's now inside the house. अब उसको वो सारे बिलोंगिंग्स देखने का मौका मिल रहा है। And unfortunately, what she could see inside the house was not a pleasant sight to her.
because he found that all those belongings were in a kind of distasteful manner. Okay, they were not treated very well, they were not managed very well, they were not looked after very well. Okay, and they were not used cautiously, and they were not valued by this lady, Mrs. Dorling, as they used to take care of these belongings earlier. जो बिलोंगिंग्स को बहुत ही देखभाल के संभाल के नरेटर की मदर और खुद नरेटर जो सारी चीजें उसकी थी, उनकी थी, ठीक है, उसको जिस ढंग से, जिस बढ़िया तरीके से वो यूज करते थे, रखते थे, संभालते थे, उस तरीके से उसको नहीं दिखा। उसको बहुत दुख हुआ ये चीज देखकर कि लाइक ऑल दोज बिलोंगिंग्स वर केप्ट इनसाइड दिस हाउस इन अ वेरी reckless manner, in a very distasteful manner. ठीक है, तो कोई भी चीज की कोई कदर नहीं हो रही थी और बहुत ही घटिया तरीके से ये सारी चीजों को घर में रखा गया था। तब उसको रियलाइज होता है, दुख होता है, लेकिन साथ में ये रियलाइज भी होता है कि probably these things do not belong to her anymore now. हम ये चीजें जो है उससे, क्योंकि बेसिकली वो सारी चीजें लेने को ही आई थी, ठीक है, बट इनिशियली शी हैड एन इंटेंशन टू वेट फॉर दिस लेडी मिसेस डोर्लिंग टू कम बैक. Okay, but while she was waiting for this lady to come back, she observed the situation, and after observing the situation, she lost all her interest to like reclaim those things anymore. अब वो सारी चीजें सडनली उसको ऐसा हो गया कि अब उसको ये सारी चीजें वापस नहीं चाहिए। क्या फायदा अगर मैं ये सारी चीजें वापस ले भी जाती हूँ तो उसको देख देख के मुझे पास्ट का समय जो है वो याद आएगा। मम्मी की याद ऑब्वियसली वो तो आती है, लेकिन और ज्यादा आएगी और उसको ज्यादा दुख होगा, ठीक है। और ऐसे ही सोच के साथ she just decided not to recollect those things, and informing this 15-year-old girl that she would be leaving and she would never come back. मैं जा रही हूँ ऐसा करके बोल देती है 15 साल की लड़की को, ठीक है, और एक भी चीज लिए बगैर वो चुपचाप घर में से निकल जाती है, ठीक है। And again on her way back, she suddenly realized the uselessness of recollecting all those things, the uselessness of living with the memories. Okay, यादें एक ऐसी चीज है, मेमोरीज एक ऐसी चीज है कि अगर ऐसी मेमोरीज हैं जिसको याद करके आप खुश हो सकते हो तो दैट इज गुड, लेकिन वो यादें ऐसी मेमोरीज है जिसको याद करके अगर दुखी होना है तो फिर ऐसे बिलोंगिंग्स को, ऐसी यादों को, ऐसी जगह को छोड़ देना ही बेहतर है। सो विद दीज बिलोंगिंग्स she did not have any intention to revisit this house anymore. ये एड्रेस जो है वो जो उसके लिए एक बहुत मायने रखता था पहले, और वो एड्रेस पे कभी नहीं आएगी ऐसा वो फर्मली डिसाइड कर देती है, क्योंकि उसको दुख हो ऐसा उसको लग रहा था। उसने जो सारी चीजों की जो हालत देखी, ठीक है, वो कोई खास अच्छी हालत में नहीं थी, और उसको अब ये लगने लगा था कि लाइक दोज थिंग्स डिड नॉट बिलोंग टू हर एनीमोर, एंड प्रोबेबली दिस प्लेस आल्सो, ये जगह, ये टाउन, ये शहर, ये माहौल, ये एटमॉस्फेयर, ठीक है, अब उससे उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। शी फर्मली मेक्स अ डिसीजन टू rebuild, restructure her life and move on, ठीक है, वो मूव ऑन करने के बारे में सोचती है, क्योंकि उसको तो जिंदा रहना ही है, लाइक शी स्टिल हैड अ लॉन्ग लाइफ अहेड ऑफ हर, और कोई भी ऐसी चीज जो उसको दुख देने वाली है उसको अब साथ में नहीं रखना है, उसको छोड़ देना वही बेहतर है, क्योंकि ऑलरेडी उसके दिल में बहुत दुख था, and she did not want to increase the grief and sadness inside her heart. ऐसा सोच के वो permanently decides to leave that place and those belongings and decides to move on along with her future life. इस तरह से ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है,
मैंने जो आपको समरी डिस्क्राइब किया, दैट बेसिकली कवर्स द होल स्टोरी, okay, but I'm not reading the story word by word in front of you, so I'm strongly recommending you to go through the story of the textbook, the original content of the textbook. उसको आपको 2 बार कम से कम जरूर पढ़ना है, so that you might well be in a position to understand the story very well, क्योंकि ज़्यादा करके स्टोरी जो है वो नरेशन है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, ठीक है, तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, and only then after you should do the exercise part, which for which the camp publication reference book would be the best for you. So for now, this lecture, the video lecture comes to an end. Thank you very much for your time. Have a good day.